over the last 3-4 years. Like the last time we talked was right before जैसे आपकी मर्जी, after कैसी तेरी खुदगर्जी, and then there's been a nice string of solid hits after that. How does it feel today from there to now? क्या It's बदला? actually been 5 years. 5 years हो So गए. yesterday, यहाँ पता एक हफ्ता पहले something कोई मेरी notification आई, and I realized it's been 5 years because Dilruba came on air in March something, I think. हाँ. So 2020 of March. So it's 2025. So it's been 5 years. Oh wow, Yeah. दिलरुबा को 5 साल हो गए हैं. Yeah, I count Dilruba as my debut because that was my Absolutely, debut. Yeah. absolutely. And I still remember, and we of course spoke about this in our last interview. लेकिन दिलरुबा देखते हुए, although वो एक supporting character था इरम का, जो कि हानिया का character lead उसकी बहन होती है, but impression था उस वक्त भी. It was like, you know, there is something special about this girl. And then lo and behold, उसके बाद lead और उसके बाद, you know, one hit after the other. And look how सिर्फ 5 साल. सिर्फ 5 साल. लगता नहीं है. मुझे मेरी अम्मी और बहन बहुत ये चीज़ रियलाइज कराते हैं जब मैं घर में बैठी रहती हूँ और मैं कहती हूँ मुझे ये नहीं करना, दिल नहीं चाह रहा काम पे जाने का, या कुछ मैं ऐसी बात कह देती हूँ कि यू नो अभी आई डोंट फील लाइक वर्किंग. सो लाइक but when it's been 5 years, just 5 years, and see the amount of love you get, Yeah. so go work. Yeah. लेकिन दुर्रे कैसा लगता है सिर्फ 5 साल में from coming into the industry, and of course your father was from PTV and from that, but nobody else in acting. तो कैसा लगता है कि support you've done the dream, like you know. Yeah. 5 साल मुझे लगता है ख्वाब है एक, बिल्कुल किसी का भी ख्वाब हो कि आप एज अ सपोर्टिंग एक्टर एंटर करें इंडस्ट्री में, उसके बाद लीड, उसके बाद सक्सेस एंड यू नो फैंडम बहुत सीरियस किस्म की, एंड देन यू गेट द बिग ब्रांड्स एंड यू गेट द फैशन शूट्स, एंड यू नो इट्स लाइक देखने वाले को लगे दुर्रे इज लिविंग द लाइफ. एंड हाउ हैज दैट लाइफ बीन फॉर द 5 years? अल्हम्दुलिल्लाह. अभी जब मैं सुनती हूँ ना ये बातें, तब मुझे ज्यादा हिट करती हैं बिकॉज मैं सोचती नहीं हूँ ज्यादा इसके बारे में. आई हैव नेवर टेकन माई सेल्फ सीरियसली, नेवर, नाइदर द फेम, and when I say I don't take it seriously, I mean like it doesn't drive me crazy, or it doesn't drive me to the point that I have to act a certain way now, or I have to be a certain way. I'm still the same person, but जो बदला है वो ये बदला है that over the past 5 years, and with the kind of work and the kind of love I've gotten, I have gotten a bit scared now. So I've been, it's the different kind of scare that, acha, what should I do next? I don't want to disappoint the love that I get, the audience that love me for doing nothing, I feel like. So हाँ वो एक डर आ गया है अब. But if you ask me पिछले 5 साल कैसे गुजरे, तो मुझे लगता है कि यूं गुजरा है. Especially the past 2 years, I feel like अभी तो हुआ था, अभी तो शुरू हुआ था. So टाइम गुजरते हुए पता नहीं चलता वाकई. कभी सोचा है कि लोग इतना प्यार क्यों देते हैं? I don't know. I'm just very, very lucky, I feel. अल्लाह मियाँ का कोई बहुत फेवरेट काम मैंने कोई किया होगा जिसकी वजह से मुझे इतना प्यार मिल रहा है. वरना I genuinely feel, and without being humbled about it or anything, I genuinely feel that I'm doing half as hard work, half as commitment towards my work that the other actresses of my generation are. Yeah. And I feel like I'm getting more love. So हाँ, like just very overwhelmed, but ये नहीं पता कि मैं क्या कर रही हूँ अनोखा. But just I feel like must be doing super something lucky, right. Yeah, absolutely. Because जो जिस किस्म का प्यार आपको मिलता है वो is not by chance, या वो ऐसे नहीं कि एक हिट प्रोजेक्ट या एक कोई बात ऐसी कर दी जिसकी वजह से लोग प्यार कर रहे हैं. वो एक बड़ा स्टेबल प्यार मिल रहा है over the years. People are really like invested in, you know, Durre Vishant. So you must be doing something right. And Durre, I also feel that you've been very careful. I mean, post maybe the first 1 or 2 years, जब वो भी ऐसे ड्रामे मैं नहीं कहूँगी जो problematic थे, लेकिन अब you're very like particular about the characters that you take. और I think उसका शायद turning point खाई था. Not really, actually. So every time that I've chosen a script, मैंने कभी इतना overthink, calculate करके नहीं pick की कोई script. It has always been like
मुझे दिल पे अच्छी लगी है, और मैं कोई भी काम जिंदगी में ऐसे ही करती हूँ, मैं कभी दिमाग से नहीं सोचती, और ये बहुत अजीब चीज है, नहीं करनी चाहिए। मैं हमेशा दिल की सुनती हूँ। मैं सुनती हूँ कि मेरा दिल खुश है इस चीज से, मेरा दिल मुतमईन है इस स्क्रिप्ट से, लाइक विल आई एंजॉय द प्रोसेस, विल आई एंजॉय बीइंग विद द टीम, दैट्स ऑल आई थिंक, एंड दैट्स exactly how I sign a project. Till today, there is no calculation that I go through. But yes, if you say that I have become careful choosing my scripts, I feel I've always been. I feel I've always been a very selective person in terms of saying a lot of no's, because that's something I think I'm famous for also. कि ना ज़्यादा कहती है, हाँ कम कहती है. But बिकॉज मुझे जब तक स्क्रिप्ट, और वो आई एम नॉट सेइंग कि मैंने कोई बहुत कमाल स्क्रिप्ट हमेशा चूज की है, बट मुझे बहुत खुशी मिली है वो करके, और मैं बहुत मुतमईन रही हूँ। कोई और पढ़ता है आपके साथ स्क्रिप्ट, या आप खुद ही? मामा यूजुअली रीड्स माय स्क्रिप्ट्स, बट पिछले 1 साल में मजे की बात क्या हुई है, उन्होंने इतनी स्क्रिप्ट्स पढ़ ली हैं, और उन्होंने मुझे, और वो ड्रामे चल भी गए, और वो ना ड्रामे देखती हैं, तो अब उन्होंने बहुत से ड्रामे देखना छोड़ दिए हैं, बिकॉज़ वो कहती हैं मुझे तो पता है इसका एंडिंग क्या होनी है, मुझे तो पता है इसमें क्या होना है, because she's reading all of them. So now she keeps saying me that now I'm not going to read your scripts because you're not going to do it. So पिछले कुछ 3 महीने में कुछ हुआ है कि जो भी मैं स्क्रिप्ट पढ़ रही हूँ, अब ये पूरी मैं खुद पढ़ रही हूँ, बिकॉज मामा ने हाथ उठा दिया है, क्योंकि पिछले 2 साल स्पेशली राइट आफ्टर इश्क मुर्शिद एंड खई, the amount of scripts I got, mama was reading them. And she used to give me like a synopsis of, you know, you should do that. And but अब वो नहीं करती, अब वो कहती है तुमने करना ही, 1.5 साल में एक प्रोजेक्ट है, तो तुम अपनी मर्जी से करो। तो अब ये है, और ये लिटरली आप 1.5 साल में एक प्रोजेक्ट ही कर रहे हो, या शायद 1 साल, which I really appreciate by the way, I have to say. मुझे पता है कि लोग बैक टू बैक भी काम करते हैं, उनकी अपनी वजूहात हैं, ओवरलैप भी ड्रामे हो रहे होते हैं, वो भी अपने, बट आई रियली लाइक द फैक्ट दैट यू हैव, व्हिच आई थिंक आल्सो इज अ प्रिविलेज, कि आप ज़हनी भी और हर तरीके से कि आप ना करके पीछे भी हट सकें। So one, it is a privilege for sure. People who work back to back, I don't think so I have the strength, the commitment to be on a set 365 days. I can't. And especially because this work for me and for all of us is very creative, but for me I need to be mentally and physically well to be on a set. If I'm slightly mentally upset, physically not well, I cannot be on a set. And this is one of the reasons that मैं अपने spell में भी breaks लेती हूँ, that I'll do a spell and then I'll take like 10 days off, 12 days off. I can't be continuously working. And ये मेरे अंदर भी एक चीज़ है कि मुझे ज़्यादा काम करना पसंद ही नहीं है, और काम कोई भी काम, ये नहीं कि ये काम, मुझे काम करना ही ज़्यादा पसंद नहीं है। The idea of going to gym, coming home, eating, sleeping, watching a movie is my ideal life. 6 months of the year, I would only say. फिर मैं बोर होना शुरू हो जाती हूँ, बट 6 महीने में बहुत अमेजिंग गुजार सकती हूँ ऐसे। 6 महीने रेस्ट, 3 महीने काम, फिर काम, एंड यू नो समथिंग लाइक दिस। बट वही बात, ये एक प्रिविलेज है। आई फील लाइक बहुत से लोग ये अफोर्ड भी नहीं कर सकते, और बहुत से लोग शायद उन्हें काम में वो मजा आता है जो शायद मुझे इतना नहीं आता। 24 घंटे और हर वक्त काम करने। और जब हम प्रिविलेज कहते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि मॉनेटरी साइड पे सिर्फ, कई लोग वर्कaholic होते हैं, वो हर वक्त काम करते हैं, उनको काम करना होता है, उनको यू नो अनवाइंड करना ही नहीं आता। मैं भी ना ये बनने की कोशिश की थी, आई स्वेयर। और क्योंकि मेरा स्टार का किसी ने मुझे एक दफ़ा बताया था, नॉट दैट आई एम इनटू स्टार्स एट ऑल एनीमोर, बट मुझे शुरू में किसी ने बचपन में बताया था कि यू नो योर स्टार हैज दिस वर्कaholic थिंग एंड ऑल ऑफ दैट। तो ऑल माय लाइफ आई यूज्ड टू ग्लोरीफाई दिस कॉन्सेप्ट। Lately, and that lately has come 2 years before, I realized that I drained myself when I did this